Okay. Hello, warm regards to all of you. I'm Dr. Pranita Patil. I'm your host for today. I welcome all of you on behalf of Ignited Minds by PHF under the mentorship of our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. Today is our seventh lecture of World Homeopathic Day series. Today I am happy to introduce one of my closest person. You all must be knowing Dr. Vaishali Rathod Madam. She is from Motiwala Homeopathic Medical College, Nashik. She is practicing in Ahmednagar. She is very famous homeopath from Ahmednagar. Madam is very responsible admin of PHF, very active on Telegram study groups and one of the key member of PHF. She has very good knowledge of repertory, very disciplined, very hardworking, and she has been Sir's friend since college days. Since the day she started practicing, she is practicing on mind method under the guidance of Dr. Liaquat Namole sir. She has attended 3 CTPs. CTP is classroom training program of Dr. Liaquat sir. So without wasting much time, let's welcome our eminent homeopath, Dr. Vaishali Rathod Madam. Everyone please clap for Madam. Welcome, Vaishu. Over to you. Thank you, everyone. Good afternoon. Good afternoon. And one more I am going to tell. Dr. Vaishali is my friend since 1996. Okay. And she has grasped homeopathy so fast. I mean, she's not practicing since very long. I mean, as far as 8-10 साल हो गए होंगे. But जितना fast वैशाली ने pick up किया है, I am telling you, I feel so proud to be a very close friend of her. She is a family member to me. She is not only a friend now. We are family, and she will tell you how she understands patients and without biases, how she practices, and a very good mother also. I am telling you, she is a very good wife and a very good mother also, because I am friend of her husband also and the children and even her parents, and also needless to say, but a very good person apart from being a homeopath. That is what is required actually to be a homeopath. You have to be a good person. Okay, so I'm very happy that she is taking lecture today. Please start, beta. Thank you. Actually, thank you. बहुत छोटा सा वर्ड है. मतलब 2015 में हम लोग मिले थे. मतलब लियाकत is my senior, 2 years senior. So तब होम्योपैथी में कुछ भी नहीं करती थी मैं. कॉलेज से जो छोड़ा होम्योपैथी, तब से पूरा आफ्टर मैरिज मैंने RMO शुरू किया था. तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग गायनेक, पूरा ड्यूटी करती थी, कुछ भी नहीं, होम्योपैथी में 0. लेकिन लियाकत ने अगेन ड्रैग मी इनटू होम्योपैथी. मतलब 2016 में उसने बताया था कि 2017 में तेरा क्लिनिक होगा. तो मैंने बोला था क्या दिन में सपने दिखाते हो? तो ये सेड कि दिन में जो सपने देखते वही सच होते हैं. एंड एक्चुअली मेरा क्लिनिक 10 जुलाई 2017 को उसी के हाथ से इनॉग्रेट किया मैंने, क्योंकि वही तो जो था कि जिसके वजह से ये पॉसिबल हुआ. नहीं तो होम्योपैथी में मैं पूरा भूल गई थी एक्चुअली. लेकिन माइंड मेथड रियली वंडरफुल, यानी उसके वजह से जो कॉन्फिडेंस आता है और जो होम्योपैथी इज वर्थ एंड मिरेकल जो लगता है वो उसमें ही लगता है. इतना फास्ट रिजल्ट और इतना आसान है ये. लियाकत के साथ रह के पता चलता है कि होम्योपैथी इज वेरी इजी. वो जब दूर हो जाता है तो ऐसे लगता है अरे डिफिकल्ट है, लेकिन फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है. चलो, शेयर माय स्क्रीन. Gratitude to Dr. Hanneman.
we are all the chosen ones practicing homeopathy. This is my dream came true. Inauguration of my clinic by Dr. Liaquat, and my support system, my mummy, papa, my husband. Now coming to case. Actually ये केस मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उनका है। उनकी डॉटर इन लॉ जो है वो मेरे पास आई थी, उसको पाइल्स की तकलीफ थी। तो इसके पहले भी थी, मतलब बिफोर मैरिज ऑल्सो शी वॉज हैविंग द प्रॉब्लम, बट उसको तब इतना उसने ध्यान नहीं दिया। टेम्पररी कुछ ना कुछ लेती थी और ठीक हो जाता था। लेकिन अभी आफ्टर मैरिज इतना ब्लीडिंग हो रहा था उसको कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था उसका ब्लीडिंग, एंड बर्निंग, बहुत ज्यादा सीवियर बर्निंग था। उसके जो फादर इन लॉ है वो भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो बोरिक मटेरिया मेडिका पढ़ के उनके खुद के फॉर्मूलेज है, उसके थ्रू वो प्रैक्टिस करते हैं। तो उन्होंने भी काफी मेडिसिन उसको दिया, लेकिन उससे भी उसको कुछ हेल्प नहीं हुआ। फिर उसने सब छोड़ दिया था काफी दिन, लेकिन फिर ज्यादा ही प्रॉब्लम हुआ तो फिर शी कॉन्टेक्टेड मी। तो वो जब आई मेरे पास तो एक्चुअली उसको सीवियर बर्निंग था, और वो वैसे एकदम ओपन हार्टेड लड़की है, मतलब मेरे से बात करने में भी उसको कोई झिझक नहीं थी, एकदम आराम से सब बताया उसने। और उसका एक ये था कि उसको यहाँ पे मैंने डाला है इसमें सब कि उसको एक्टिंग करने का बहुत शौक था। किसी भी पर्सन मतलब जो आके गए तो उनका वो एक्टिंग करती थी, तो और उसका फन बनाती थी मुझसे। तो इस पे से ही हम वो जो स्लाइड है उसका केस का वो मिस हो रहा है इसमें, तो मैं पढ़ के बताती हूँ कि शी केम, उसने बोला आंटी मुझे पाइल्स की तकलीफ है, वैसे 3-4 महीने से है लेकिन अब ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो मैंने उसको पूछा शादी से पहले भी तकलीफ थी क्या, तो वो बोली हाँ, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अभी ज्यादा 3-4 दिन से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और जलन बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो मैंने उसको पूछा जब तकलीफ होती है तब तुम क्या करती हो, क्या करने का मन होता है तुम्हारा। तो बोली सोने का मन होता है, जैसे चुपचाप बिस्तर पे पड़े रहना, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और क्या होता है जब दर्द होता है, किसी से बात करती हूँ तो बोले नहीं, बोले बात भी नहीं करना, बस रोना आता है दर्द के वक्त। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही दर्द कम होता है तब मैं वापस से सब भूल जाती हूँ और अपने रूटीन में लग जाती हूँ। और क्या होता है मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला जब सुबह टॉयलेट जाना होता है ना तो सोच के ही डर लगने लगता है। क्या डर, क्यों डर लगता है, तो बोले फिर से वो इतना जो दर्द होगा वो सहना पड़ेगा, वो सोच के डर लगने लगता है। तो ये सब पे से मैंने उसे एक मेडिसिन दिया। तो हम पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपको अभी जो इंफॉर्मेशन मिला है उससे आप क्या सोचते हो। यस, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, madam. सो प्लीज पार्टिसिपेंट्स, ये जो मैंने अभी बताया वर्बेटिम, इस पे से आपको क्या समझ में आता है बताइए। यस, डॉक्टर दक्ष, फियर ऑडियल, फियर ऑडियल कैसे लगा आपको? हेलो, हाँ, यस मैम। विजन ऑफ फायर, यस, विजन ऑफ फायर, बर्निंग बहुत है। हाँ हाँ वो है, फायर विजन ऑफ ये है। हाँ, और फियर ऑफ सफरिंग है। हाँ, हमको यही देखना है कि फियर ऑडियल है, फियर सफरिंग है या और कुछ है, इसमें ही हमें डिफरेंशिएट करना है। पहले कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों फियर सफरिंग लगा? पेशेंट को बाथरूम को जाने के लिए ये होता है।
जा नहीं सकते, वो डर फिर डर वापस वही दिखने तकलीफ हो जाए ना, यस, वही तकलीफ ना हो जाए फिर वापस, हाँ, तो इसको कैसे वही लेंगे आप? सफरिंग के लिए वो डरते हैं, सफरिंग क्या है? देयर सफरिंग, सफरिंग को कैसे हम डिफाइन करेंगे? वो सिचुएशन से नहीं जाना चाहती है ना, फिर वापस वही तकलीफ होगी उससे। तो उसको हम ऑडियल कहेंगे ना, वो सिचुएशन यानी पूरा जो ऑडियल है, ऑडियल में क्या होता है कि सीक्वेंस होता है, जो सफर होते हैं हम उसका, वो ऑडियल हुआ। और सफरिंग में पेशेंट सफर होता है, इसको यहाँ पे क्या डर है कि उसको जो पेन होगा वो पेन उसे नहीं चाहिए। फियर पेन हो। हाँ, यहाँ पे Fear फियर पेन pain, आएगा हाँ, कि उसको वो पेन का ज्यादा डर है कि मुझे वो पेन वापस नहीं चाहिए, ये डर है। तो फियर पेन एक कंफर्म हुआ, डिल्यूजन फायर विजन कंफर्म है। और वो जो एक्टिंग करके बताती है उसको हम क्या लेंगे? इमिटेशन। imitation, यस, Imitation इमिटेशन mimicry. मिमिक्री, करेक्ट। तो हम इस पे से कौन से मेडिसिन तक पहुंचते हैं? कुठला आहे? फ्रिवोलस सोच सकते हैं वैसे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया तो उसको एक्चुअली थोड़ा और कौन से इसमें जा सकते हैं? मैम इसमें वीपिंग पेन्स विथ यस, और fear injury being injured, bad desire to remain in bed, आ सकते हैं। फियर इंजुरी से ज्यादा उसको पेन का जो डर है ना, तो इंजुरी में कैसे हमको कोई घाव होगा इस चीज का डर है। इसको यहाँ क्लियरली उसने डायरेक्ट बोला है कि मुझे पेन का डर लग रहा है, कि मुझे वो पेन बर्दाश्त नहीं होता, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फियर पेन डायरेक्ट रुब्रिक है। और जो वो रोती है, कौन की ओर जा रही है मैम ये, अगर ये Yes. सारे कॉन्जिया। यस मैम। तो ये जो केस है, ये डिल्यूजन फायर विजन, फियर पेन और फ्रिवोलस, इमिटेशन मिमिक्री, बिपिंग पेन और क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज। उसको सोने का मन करता है, कोई बात ना करे ना, तो क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज, ट्रैंक्विलिटी डिजायर। तो ये स्पॉन्जिया हुआ। ये स्पॉन्जिया से ठीक हुई, 1 साल तक उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, एकदम से ठीक था उसको। लेकिन अब क्या हुआ, 1 साल के बाद वो फिर से मेरे पास आई। बीच में कभी एक ही बार सिर्फ रिपीट करना पड़ा मुझे स्पॉन्जिया 3 डोसेस, उसके बाद उसको कोई तकलीफ नहीं था। पर अब जब आई वो, उसकी स्किन पे पूरा इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन था, मोर ऑन लोअर एब्डोमेन, थाइस। तो मैं वो पिक्चर नहीं बता सकती, इसके लिए वो शेयर नहीं किया है। बहुत ज्यादा इचिंग होता था उसको। तो उसको मैंने पूछा ये कब से है कंप्लेंट, तो वो बोली ये अभी 2 महीना हो गए, लेकिन जो उसका नेचर है वापस से, कि जो उसने ध्यान नहीं दिया उसको। तो मैंने सोचा कि वो, हेलो हेलो, सब लोग म्यूट करो प्लीज। हाँ मैडम। हाँ, तो उसने पहले 2 महीने से है तकलीफ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कैसे हो रहा है, उसको जो क्लोथ से कवर हो रहा था तो उसने इतना उसके बारे में नहीं सोचा कि कपड़े पहन रहे तो नहीं दिखता है। लेकिन अब उसके फेस पे आने लग गया, उसके आईब्रो और नोज के वहां से उसने मुझे बताया इरप्शन, ऐसे दाने दाने बारीक आते और खुजली बढ़ के फिर वो बड़ा हो जाता है। तो मैंने पूछा उससे क्या होता है, तो बोली ये अच्छा नहीं दिखता है ना, लोग पूछते हैं। तो मैं बोली तो क्या होता है, लोग पूछते हैं। तो बोले नहीं अच्छा नहीं लगता, अभी फेस पे आने लगा है तो मैं ज्यादा कॉन्शियस हो गई कि ये ऐसे दिख रहा है करके। जब तक अंदर एब्डोमेन पे और वो था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने पूछा कि ठीक है, अच्छा और कैसे चल रहा है घर पे। तो बोली घर पे मदर इन लॉ का उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ये मुझे वैसे भी पता था, तो भी मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे पूछा। तो बोली मेरे मदर इन लॉ का नेचर तो आपको पता है कि उनको हर चीज ऐसे जगह पे चाहिए, काम मतलब एक काम किया तो उसको वो पूरा खत्म करना चाहिए, या उनके हिसाब से जो उनको आदत हो गई थी। अभी ये डॉटर इन लॉ तो नहीं आई थी ना, लेकिन उनका जो पहले का काम का जो रूटीन था वो उनको जैसे के वैसा ही होना चाहिए था। इसके लिए उसको वो तकलीफ होती थी कि वो हमेशा टोकती थी, अरे ये ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो और उसको बोलती थी, और उसके बाद वो उसको फादर इन लॉ को भी जाके बताती थी कि इसने आज ऐसे काम किया वैसे किया। तो उसका कहना था कि ये ऐसे क्यों करती, क्योंकि उसने वो सुना उनको बताते हुए।
उसका कहना था कि जो बोलना है आप मुझे बोलो ना डायरेक्ट, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती कि मेरे पीठ पीछे जाके उनको बताती। तो इसके लिए उसको वो सहन नहीं हो रहा था, और उसके वजह से मैं बोली फिर अच्छा ठीक है, हस्बैंड को बताया कि ये ऐसे होता है, तो बोली उनको बता के कुछ फायदा नहीं, वो उनकी उसकी साइड नहीं लेते, वो मम्मी सही है ऐसे बोलते। तो बोले मैं जब अकेली होती हूँ तो ये सब सोचती हूँ, और मुझे रोना आता है कि मैं तो सब कर रही हूँ फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ बातें सुननी ही पड़ती है। तो ये सब हुआ उसके साथ। तो अब इसको हम क्या देंगे? यस, हेलो। पहला केस जो हमने स्पॉन्जिया दिया था, अब इसके साथ ये प्रेजेंटेशन के साथ हम कैसे जाएंगे? extravagance of dishes, madam. एक्स्ट्रावेगेंस मतलब? वो अभी स्किन की प्रॉब्लम बहुत हो गई है उनको, हाँ तो इसलिए वो हम्म, एम्ब्रासमेंट है, हाँ एम्ब्रासमेंट भी है। एम्ब्रासमेंट है, हाँ एम्ब्रासमेंट तो है। लेकिन एक्स्ट्रावेगेंस ऐसे नहीं लेंगे ना हम इसको, यहाँ पे उसने बोला सिर्फ बढ़ गया इसलिए अभी वो मेरे पास आई। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंस कैसे इन कंपैरिजन पहले इतना था और अभी देखो कितना सारा हो गया, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था उसका। अभी उसका मेन कंसर्न क्या था कि फेस पे दिखने लगा। पर्सनल अपीयरेंस, हाँ पर्सनल अपीयरेंस, और क्या आएगा? मैम उसको लोग भी टोकने लगे हैं, मतलब उसको डर लगता है कि लोग बोलेंगे, तो हाँ, ये शायद क्लियर ओपिनियन ऑफ अदर्स होगा कि भाई वो टोकेंगे तो बोल भी सकते हैं ऐसा करो वैसा करो, वो भी उसको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि सास का टोकना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशली वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि सास जाके ससुर को बोल रही है, वो बोलती है मुझको बोलो डायरेक्ट। तो शायद ये उसको इंडिग्नेशन भी मानेंगे कि मैम एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, ये इसका इंडिग्नेशन में काउंट होगा कि वो कह रही है कि भाई जो बोलना है मुझको बोलो ना, दूसरे को क्यों बोलते हो। तो ये शायद राइटियस एंगर हो उसका, इसीलिए ये इंडिग्नेशन में आएगा। इसको कैसे इंटरप्रेट किया आपने? कि मैंने ये बोला कि देखिए जो आपको कहना है मेरी कमी है तो आप मुझे बताइए, मेरे ससुर को या किसी और को क्यों बताते हो, तो ये तो गलत बात हुई ना। हाँ, मेरी तो कमी इसको मुझको कैसे बोलो लेंगे भाई। हम? तो मैंने तो मैम इसको एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन लिया, और मैम एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट की वो चेहरे पे आने लगा है, दिखने लगा है, अभी उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मैंने। तो ये 3 रूब्रिक लिए तो मेरा तो मैम एम्ब्राग्रेस ही आ रहा है इसमें, इसका कोई तुक तो नहीं लग रहा मुझे। और कोई? हेलो मैम। यस। हाँ मैम, जब तक इसको पूरा बॉडी पे था तब तक ये फ्रिवोलस थी, लेकिन जब हाँ, फेस पे आने लगा तो ये मतलब बोलने लगी, मतलब फेस पे आ गया है, इसीलिए इसने आपको दिखाया। मीन्स हाँ, ऑब्जेक्ट डिल्यूजन ऑब्जेक्ट्स आर ग्लिटरिंग, मतलब ये एक रुब्रिक लगा। और फ्रिवोलस देन सर मैम ऐसे बेलेडोना का फील आ रहा है, और इसको सासू माँ की किटकिट भी हमेशा, मतलब मेरा काम पसंद नहीं आता उन्हें, मतलब उनके हिसाब से मेरा काम नहीं होता है ना, इसीलिए मतलब इसको इसके हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन सासू माँ किटकिट करती है तो इसको पसंद नहीं है, मतलब ये एक बात लगी। और मतलब ये करती है लेकिन फिर भी इसको मतलब सासू माँ मतलब बार बार रोज रोज की किटकिट लग रही है, मतलब ये बात भी इसको। Can you tell me what is this रोज की किटकिट लगना? What is this रोज की किटकिट लगना मतलब क्या? मतलब सर ये लाइट, मतलब ये लेडी जो है मतलब इतना अच्छा फ्रिवोलस और लाइट डिजायर में लगती है, मतलब ऐसे इसको रोज रोज की किटकिट इन द सेंस कि कोई रोक टोक या फिर ऐसे कुछ ये पसंद नहीं होगा। नहीं, उन्होंने रोक टोक के बारे में नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मैं काम करती हूँ लेकिन सासू माँ रोज रोज किटकिट करती है, मतलब रोज रोज नाम रखती है, जो भी हाँ वॉट हाँ एवर। हाँ, या तो व्हाट इज दैट? तो व्हाट डज दैट मीन? आपको पसंद आएगा क्या कि आप सब काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, और सासू माँ आपके काम में रोज ये कर रही है? विल यू लाइक इट? नो सर। सर रिप्रोच आ सकते हैं क्या? देन व्हाट इज दैट? थिंक देन। रिप्रोच नहीं, आप लोग क्या मत बोलो, यू टेल मी द एनालिसिस ना बाबा।
हेलो सर। सर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा हो सकता ना? डिलीजन रॉन्ग सफर। रॉन्ग सफर क्यों बेटा? क्योंकि मैं तो जो कर रही हूँ वो सही सही कर रही, लेकिन सासू माँ मुझे गलत समझ रही है ना। और गलत जो क्या हो समझ रहा रही है? है गलत नहीं मतलब रॉन्ग सफर्ड। अच्छा ठीक है, ओके। लेकिन ये रोज का है ना, रूब्रिक क्या है? रॉन्ग सफर्ड मतलब क्या? मेरे साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है। हाँ इसके बाद रोज हो रहा है। हाँ। सोचो थोड़ा। मैम मुझे ये एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर इंडिग्नेशन लगा, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच लगा, और एम्बेरसमेंट भी है उसको। और अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज इंडिग्नेशन बेटा? व्हाट इज इंडिग्नेशन? इंडिग्नेशन सर एक तरीके से मतलब मेरी जो डिग्निटी है ना वो हर्ट हो रही है बार तो बार, व्हाट इज वो डिग्निटी? गलत हो रहा है मेरे साथ, वो मेरे साथ व्हाट इज गलत डिग्निटी? हो रहा है। और व्हाट इज राइटनेस डिग्निटी? व्हाट इज डिग्निटी? डिग्निटी आत्मसम्मान होता है सर। आत्मसम्मान। जो खुद खुद के लिए पर्सन सोचता है कि मैं इस लायक हूँ, दैट इज मतलब मेरा ये एक वैल्यू है, वो डिग्निटी है। जो खुद अपने लिए क्राइटेरिया फिक्स करता है वो डिग्निटी है सर। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने ये क्राइटेरिया फिक्स किया था इनके लिए? ये पेशेंट में आपको कैसे पता चला कि ये पेशेंट ने अपना डिग्निटी का क्राइटेरिया फिक्स किया था? सर वो समझ रहे हो बोलती ना? है ना, सर वो बोलती हाँ। है कि जो बोलना है वो मुझको बोलो, भाई कमी है तो मुझको बताओ, गलती है तो मुझको बोलो, ससुर की तो इसमें डिग्निटी का क्या संबंध है? इसमें नहीं डिग्निटी डिग्निटी का नहीं क्या सर, संबंध? सर इंडिग्नेशन जो नहीं हमने नहीं, लिया ना कि हाँ तो हाँ डिग्निटी से इंडिग्नेशन हो रहा है ना बेटे। ओके ओके तो इंडिग्नेशन मतलब डिग्निटी तुम्हारी नहीं करना ना, ओके तुम्हारी डिग्निटी ओके को ठेस पहुंचाना या तुम्हारी डिग्निटी को, समझे ना? ओके सर। समझ रहे हो ना? हाँ जी सर कैच करने की कोशिश तो मूल सर शब्द तो डिग्निटी है ना बेटा, उससे इंडिग्नेशन आया ना। सर ये फिर रिप्रोच ही हुआ है ये, वो जो बार बार बोल रही है ना, व्हाट इज दैट इज रिप्रोच? रिप्रोच यानी डांटना, फटकारना, कुछ कुछ बोलते रहना। व्हाट इज कमी कॉल? व्हाट इज निकालते कॉल? रहना। व्हाट इज कमी निकालने को क्या बोलते बेटा? रिप्रोच बोलते? नहीं सर गलत, सर रूब्रिक्स पे पकड़ नहीं है सर, इसलिए नहीं प्रॉब्लम बेटा, रूब्रिक्स क्यों पकड़ रहे हो आप क्यों रूब्रिक्स ठूस रहे हो? है। आप बोलते हो ना कैसे पढ़ाई करनी है, जी सर इसीलिए तो पूछ रहे हैं सर, हमको भी इसीलिए समझ हम नहीं पा आपको रहे हैं। बता रहे हैं ना, तो आप इसीलिए तो जी मैं बोल रहा हूँ। आप आपको जो दो चार ये क्यों हो रहा है पता है आप लोगों के साथ? क्योंकि आपको ना जी ये सर गिने चुने रिब्रिक्स पता है। राइट कह रहे हैं सर आप। हाँ, और आप उसके अंदर डिफरेंशिएशन करते नहीं हो। आप जी रेपर्टरी लेके देखते नहीं हो कि रिप्रोच का मतलब क्या है। डिक्शनरी लेकर आपने कभी देखा रिप्रोच का मतलब क्या है, इंडिग्नेशन का मतलब क्या है, रेप्रीमांड का मतलब क्या है? रिप्रोच अलग चीज है, रेप्रीमांड अलग चीज है, स्कॉन अलग चीज है, रूडनेस अलग चीज है। इसके मतलब देखो ना बेटा आप, और आपकी आपकी मातृभाषा में देखो, सी इन योर मदर टंग। सर हम आप लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम भूल भी जाते हैं सर एक्चुअली, जब तक नहीं मुझे लगता भूलते है दो नहीं हो चार आप, बार। सर भूलते नहीं दिक्कत हो। यही आ रही है सर, हम लोगों ने देखो सबकी मीनिंग कोशिश की है आप सर क्या कर रहे हो पता है क्या? आप अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो ऐसा बोलकर बार बार। समझ रहे हो? आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि हम भूल जाते हैं, हम पढ़ते नहीं, हम ये नहीं। आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने आप को। आप जस्टिफाई करने के बजाय परफेक्शन की तरफ ध्यान दो। समझ सर रहे वो हो? ही करना है सर। जी सर हाँ थोड़ा सा ना, देखो पहले चार लफ्ज खुद से बोलो, फिर एक लफ्ज बाहर निकालो। समझे? पहले चार रूब्रिक मन में लो, फिर एक रूब्रिक आपके मुंह से जब बाहर आएगा ना, तो समझ लो आपके 50% रूब्रिक सही आएंगे। ठीक है, चलो वैशाली मैडम आप लो। तो ये जो उसको क्लोथ से कवर करती थी तब तक ठीक लग रहा था, लेकिन अब जब दिखने लगा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं
तो ये अच्छा तो अच्छा सबने अच्छा, ये किसी ने बताया नहीं कि ये इसको बार बार जो नाम रख रही है उसका मतलब क्या आएगा? इसको क्या बोलेंगे? सासू माँ की कटकट मतलब क्या? सासू माँ की व्हाट एग्जैक्ट कटकट का मतलब क्या है यहाँ पर इस पेशेंट के लिए? हेलो, क्रिटिसिज्म, अरे हिंदी में बोलो रे। टीका टिप्पणी, हाँ, नुक्स निकालना, उसके काम के अंदर दोष निकालना। व्हाट इज दैट? समझे? क्रिटिसिज्म। हेलो, हाँ सर, कमी निकालना, बार बार कमी निकाल, हर वो चीज में मेन है कमी। ना। वो अब उसके लिए वो कटकट बोले या सरदर्द बोले या चिक चिक बोले झिक झिक बोले, वो छोड़ो। उसके कहने का मतलब क्या है वो समझो ना। हेलो, समझ रहे हो ना? जी सर। हाँ चलो, हाँ मैडम आप लोग आगे। सॉरी। तो एम्बेरसमेंट सभी ने सही पकड़ा है बिल्कुल भी, कि उसको वो शर्म आती थी सबके सामने फेस पे आने की वजह से। और वो जो उसको सासू माँ की किट लगती थी, वो क्रिटिसिज्म, एंड जो उसको अच्छा नहीं लगता था, उसका वो बहुत गुस्सा आता था, वो जो गुस्सा आता था वो सप्रेस करती थी, तो एंगर सप्रेस लिया है मैंने वहां पे। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप क्रिटिसिज्म का रूब्रिक जो ले रहे हो, कोई बता सकता क्या रूब्रिक लेना है? Diligent criticized or elements from being criticized? What will you take? Vaishali, you don't tell. Huh? I want the audience to tell. What rubric you will prefer? Diligent criticized she is or elements from being criticized? What will you take? एलिमेंट्स Why? सर, क्योंकि ये किसी को ही उसको पसंद नहीं डाइजेस्ट आएगा। नहीं हो रहा, वही उसको चल रहा है उसके दिमाग में, ये ऐसा क्या? करती है, ये वैसा करती है, और लॉन्ग टाइम तक अगर वही उस क्रिटिसिज्म को ही सोचती रहेगी कि सास ऐसा करती है, ऐसा टोकती है, वैसा टोकती है, उधर कहती है, इधर कहती है, तो सर वो जो प्रेशर रहेगा ना लॉन्ग टाइम तक उसी चीज का दिमाग में थॉट चलने का, वो सर उसको एलिमेंट में ही लेके जाएगा। कहाँ और कोई चीज भूल गया तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी चीज को मैं बहुत देर नौ तक रखे रखूं और उसको रिपीट करती रहूं, तो आई थिंक वो उसको एलिमेंट में लेके ही जाएगा, इसलिए सर एलिमेंट प्रॉब्लम। अच्छा, क्यों ऐसा जरूरी? आपने देखा कि सास ने सचमुच उसको क्रिटिसाइज किया? डिल्यूजन में जाएगा। देखो अभी आप लोग देखो अभी क्या है। ये इसको लग रहा है ना किटकिट और देखो अभी जो सीमा ने बताया वो भी बात सही है, और जो आप बोल रहे हैं वो भी बात सही है। सीमा ने बहुत अच्छा लॉजिक बताया कि बार बार अगर वो चीज दिमाग में चल रही है तो वो चीज उसको बीमारी की तरफ लेकर जाएगी, है ना? हेलो, कोई चीज अगर आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रही है तो आपको बीमारी की तरफ लेकर जाएगी ना। अगर आपके दिमाग में एक ही बात डाल दी कि ये दाढ़ी वाले टोपी वाले आतंकवादी होते हैं, कंटिन्यूअसली अगर आपके दिमाग में रोज अगर वही आपके टीवी पर आपके न्यूज में आपको दिखने को मिला, तो हर दाढ़ी टोपी आपको क्या लगेंगी? मिलिटेंट लगेंगे ना। आतंक। जैसे पहले सरदार जी लोगों के बारे में किया जाता था, याद है आपको हमारे बचपन में? 12 बजे वाला। हाँ, तो पहले फिर उनको सब आतंकवादी बोलते थे, समझ रहे हो ना? तो दैट मेक्स, बार बार अगर आपके दिमाग में होता तो वेरी श्योर इट कैन लीड टू एलिमेंट्स। वेरी नाइस सीमा, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका ये क्या कहते हैं लॉजिक, बहुत अच्छा लगा बेटा। थैंक यू सर। ओके, ये स्पेशली हमने यहाँ पे डिलीजन क्रिटिसाइज शीज ही लिया है, और इंजस्टिस कांट सपोर्ट भी लिया है कि उसको ये बात पसंद नहीं आती थी, उसको उस बात से बहुत गुस्सा आता था, और अकेले में जो उसको रोना आता था उसको वीपिंग अलोन व्हेन। तो मेडिसिन क्या आया, क्या देंगे? अरे बाप रे, क्या रिपोर्ट है आपकी जबरदस्त। अच्छा, तूने इसके लैपटॉप वाला नहीं लिया क्या वर्जन? मोबाइल है ये, एंड्रॉइड वाला। अच्छा अच्छा, क्या देंगे इसमें से हम लोग? इफ यू टेक एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग क्रिटिसाइज्ड देन फिर तो आपकी रेमेडी आउट हो गई लगे। और एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशनल रूप भी था उसका, कि वो बताते से साइन कर रही थी, साइन इनवॉलंटरी।
But if you take elements from being criticized, no issue, then directly your remedy comes to be, क्योंकि यहाँ पर diligent criticize तो है, but very rightly she said very rightly, it is elements from being criticized. Yes, yes. Because it is being criticized. Remember, from being criticized, मतलब रोज रोज चल रहा है. The rubric is elements from being criticized, है ना? मतलब रोज क्रिटिसिज्म, रोज का उसके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा है. So it is ignatia. It is ignatia. ये अंबिका ने भी ignatia बोला. Yes. और बापूसो ने भी ignatia बोला था. हाँ, पहले ही बताया. मैम ये डिफाइन भी ले सकते हैं क्या कि वो जब अपनी सास को बोलती है कि आप मुझको बोलो, उनको क्यों बोलते हो, ऐसा कि वो authority को चैलेंज नहीं सर? नहीं बेटा, ये मॉरल है ना. मॉरल है कि वो उस सासू माँ को समझा रही है ना कि आप मुझे बोल रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, है ना? शी इज कीपिंग द रिस्पेक्ट ना. वो झगड़ा का रही है, रिवोल्ट का कर रही है, चैलेंजिंग का कर रही है अथॉरिटी को. डिफाइंस इज अ टाइप ऑफ डिसोबीडियंस बेटा. Openly rebellious and scorns all authority. Defined person is openly rebellious and scorns all the authority. तो सर एक मिनट, अगर यहाँ पे सास को वो अगर ये डिफाइन होके बोलती है तो फिर उसका टोन या वो कैसा रहता सर? एक बार अगर वो तो पर्सन टू पर्सन डिफेंड करेगा ना बेटा. पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा ना. आप कौन सी क्लास से आते हो, आप स्लम से आ रहे हो, आप डिसिप्लिन फैमिली से आ रहे हो, आप समझ रहे हो ना, तो लैंग्वेज बदलेगा. आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो, कहाँ आपका अपब्रिंगिंग क्या है, उस पर डिपेंड करेगा ना कि आप डिफाई किस तरीके से करोगे. अब राखी सावंत किस तरीके से डिफाई करेगी, अमिताभ बच्चन साहब कैसे डिफाई करेंगे, दिलीप कुमार साहब उसके आगे जाके, और उनका तो अपना ही एक अलग डिग्निफाइड तरीका रहेगा डिफाई करने का. आप समझ रहे हो? जी सर. सिंपल है ना. ओके सर मुझे इंट्रोस्पेक्शन भी मार्केट लगा. वो ये कर रही थी, मेरा कहा गलत हुआ, क्या हुआ, ऐसा इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी. मैंने दो ही रूब्रिक लिए, एलिमेंट पॉइंट रिप्रोचेस और इंट्रोस्पेक्शन. उसमें इग्निशन. रिप्रोचेस नहीं है बेटा. फिर से रिप्रोच कैसे लोगे आप बताओ? हाउ विल यू टेक रिप्रोच? रिप्रोच कैसे लोगे बताओ तुम? हर बात पे टोक रहे हैं ना उसको, ये वैसा नहीं करते, वैसा नहीं. टोकना इज क्रिटिसिज्म बेटा. टोकना इज नॉट रिप्रोच. रिप्रोच बोले तो बोल लगाना उसे, ऐसा मुझे उसको बोल लगाना. रिप्रोच हर बात पे रिप्रोच करना. दोष देते ना, रिप्रोच दोष देना. हाँ वही तो. क्रिटिसिज्म में और ज्यादा आगे जाता है. क्रिटिसिज्म जो होता है ना, वो नुक्स निकालते तुम्हारे इसके अंदर. हाँ वो स्पेसिफिक हुआ बहुत. हाँ आप सही हो. रिप्रोच भी हाँ नैरो मतलब मोर एप्ट. हाँ मोर एप्ट हो, ज्यादा करेक्शन की तरफ जाओ. नेक्स्ट टाइम फेल हो जाएगा तू. अभी इस बार रिप्रोच लेगा, फिर तेरे मन में अगर ये बैठ गया ना कि इसमें रिप्रोच लिया था मैंने इस बात को, तो नेक्स्ट टाइम तू उसमें फिर रिप्रोच लेगा एंड देन यू विल फेल. समझा ना? ओके सर. रिप्रोच का मतलब उल्हाना देना या भर्त्सना करना बोला गया कि किसी को उल्हाना देना. उल्लाहना देना मतलब उल्लाहना होता है ना बार बार में. उल्लाहना मतलब कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया. तो ये शायद आपने सही कहा कि क्रिटिसिज्म से थोड़ा लो कैटेगरी है इसकी. डीप डेप्थ ये इतना नहीं है जितना क्रिटिसाइज करने वाला ज्यादा चुभेगा आपको शायद. क्रिटिसाइज करने में चुभता है ना बेटा. हाँ. और क्रिटिसिज्म आपको जैसे सेंसरशिप के जैसा होता है ना. क्रिटिक्स किसको बोलते हैं? क्रिटिक्स होते हैं ना, पिक्चर के क्रिटिक्स होते हैं ना, सिनेमा के क्रिटिक्स होते हैं ना, वैसा. आप रिप्रोच भी ले सकते हो इस केस में, लेकिन ज्यादा तो मेरे को तो यही लगा था, क्रिटिसाइज ही लगा था. मेरे उसी बात पर तो हमने दिया था, है ना विशु? यस. मैं तो क्रिटिसाइज का एक मैंने चीज ले लिया था, मेरा ये और एम्बैरेसमेंट है, और वो ढक रही थी. सो वी हैड टेकन हाइडिंग. समझे ना? वो ढक रही थी ना इतने दिन तक, अब ढक नहीं पा रही है, तो हाइडिंग हिमसेल्फ भी एक रूब्रिक लिया था हमने. सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म मतलब उससे वो उसको छोटे सा भी क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा, उससे तकलीफ हो जाएंगी. यानी सर आलोचना. आलोचना और फियर क्रिटिसिज्म नाम का कोई रूब्रिक नहीं है. आलोचना, समझे ना? आलोचना ज्यादा मन को लगती है, समझे ना?
तो ये सासू माँ आलोचना कर रही ना, उसकी आलोचक है ना हर चीज में करने के लिए। रिप्रोच में आप बोलोगे क्या कि आप मुझे बोलो, सबको बोल रहे हो। क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग बोलते हैं ना, आप मुझे बोलो, आप अगर मुझसे कोई तकरार है तो आप मुझे बोलो। ओपन क्रिटिसिज्म वी डोंट लाइक ना, समझ रहे हो ना? जी सर, सबके सामने कहना अच्छा नहीं लगता, आप मुझे अकेले में भी कह सकते हो ये बात। हाँ, आदत आपको उसकी है। आप लोग बोलते हैं ना, कई कई दुकानों में लिखा होता है ना कि आपको अगर पसंद आया तो लोगों को बोलिए, और पसंद नहीं आया तो हमको बोलिए। ऐसा होता है ना, आप लोग शॉप्स में लिखा होता है ना। हाँ, तो दैट इज व्हाट हेल्दी क्रिटिसिज्म इज अ सजेशन, है ना? ठीक है, चलो लो वैशाली आगे लो। शी हैज मोर केसेस टू डिस्कस। यस, अभी ये हो गया डॉटर इन लॉ के बारे में। इसके बाद उसकी मदर इन लॉ आई मेरे पास। ये इससे ठीक हो गई इग्नेशिया से। मतलब एक्चुअली ये केस मैंने सर से डिस्कस किया था। मैं उसको पहले स्पॉन्जिया ही दे रही थी, क्योंकि प्रीवियस के स्पॉन्जिया से ठीक हुआ था, तो मैंने उसको पहले स्पॉन्जिया दिया, लेकिन स्पॉन्जिया से कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देन आई गेव सल्फर, सल्फर से भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने सर से डिस्कस किया था। फिर ये केस हमने इग्नेशिया के सर ने जब बताया 30 के 3 डोसेस दिए, और सेकेंड डे से, मतलब शाम में वो आई थी मेरे पास, शाम में मैंने उसको 3 डोसेस दिए। दूसरे दिन से उसका इचिंग बंद हो गया और धीरे धीरे सब ड्राइनेस आने लगा, रैशेस पूरे हील हो गए। बहुत ही मस्त रिजल्ट आया ये केस में। मतलब वो खुद भी, उसके फादर इन लॉ भी ऐसे ये हो गए थे, चौंक गए थे कि अरे इतना अच्छा रिजल्ट, क्योंकि पूरा बॉडी उसका भर गया था तब रैशेस से। मुझे सॉरी मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा इस केस में पता है क्या? कि हम लोगों के दिमाग में जो इमेज है ना कि इग्नेशिया ऐसी बात नहीं करेगी, सास के बारे में मॉरल्स में रहेगी। जैसे आप वो लाइट के अंदर फंस रहे थे, कोई तो भी बोल रहे थे ना कि उसको लाइट चाहिए, है ना? वो बेलाडोना का आपके दिमाग में इमेज है, वैसे इग्नेशिया का आपके दिमाग में इमेज है ना कि ये कैसे बात करती है, मॉरल्स वाली रहती है, ये वो। इसलिए वैशु ने मुझे वही बोली थी कि अरे इग्नेशिया कैसे, क्या इसकी भाषा ऐसी है। तो उस पर नहीं जाना है हमने। दो रिएक्शंस जो होते हैं ना, आपके अपब्रिंगिंग और आपका स्टेट ऑफ माइंड पे रहते हैं। ये सब ऐसा, ये आप दिमाग में लाओ मत। आपको मैं मतलब इग्नेशिया, गाली देने वाली इग्नेशिया भी मैंने देखी हुई है, लिटरली एकदम एमसीबीसी, समझे? ओके, हाँ वैसे बोल बेटा। मैं वही सोची कि जिसको मैंने पहले स्पॉन्जिया दिया है वो इग्नेशिया कैसे हो सकती है अभी, क्योंकि वो इतनी बिंदास टाइप की लड़की थी। मैं उसी में मॉरल्स में ही अटकी थी कि ये ऐसे इतनी, ये तो नहीं लग रही है, ये इग्नेशिया नहीं हो सकती। लेकिन मैं भी मतलब हैरान थी कि वो 3 डोसेस में वो एकदम से क्लियर निकल गई। तो उसका जब ये सब चल रहा था तब उसकी मदर इन लॉ को भी थोड़े रैशेस थे हाथ पे। उसने मुझे 2-3 बार आई थी तब बताया था कि मैं बोल रही हूँ मम्मी जी को कि आप भी चलो आंटी के पास दवाई लेने, लेकिन वो नहीं सुनते, बोले वो पापा से ही दवाई ले रहे। लेकिन फिर जब उसका भी ज्यादा हो गया तब वो आई मेरे पास, उसकी मदर इन लॉ। तो अभी 15 दिन ही हुए वो बात को। वो जब आई उसका भी पूरे बॉडी पे सेम ऐसे ही स्किन रैशेस थे, लोअर एब्डोमेन, चेस्ट। लेकिन उसके अभी कैसे लेफ्ट हैंड पे बहुत ज्यादा आ गए थे, बड़े बड़े पैचेस। तो अब लेफ्ट हैंड पे पूरे आगे तक, रिस्ट तक आ गए थे। तो अब वो तो कपड़ों से कवर नहीं हो सकते, जब तक कवर हो रहा था उसने भी इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो सबको दिखने लग गया। तो इसलिए वो अब दिखाने आई। तो वो वही बोली कि मुझे बताया था डॉटर इन लॉ ने कि आपके पास जाना है, लेकिन मैं हस्बैंड से दवाई ले रही थी, तो ऐसे कैसे छोड़ सकती। पहले ही बोले डॉटर इन लॉ आपके पास गई मेडिसिन लेने, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, उसको मेरी दवाई नहीं काम कर रही, इसलिए वो उधर गई दवाई लेने। इसलिए मैंने बोले उधर ही दवाई ली, लेकिन अब ज्यादा ही हो रहा है इसके लिए फिर आपके पास आई। तो मैंने उसको पूछा कि क्या अभी इससे क्या हो रहा है, तकलीफ कैसे है? तो बोली ये इतना हाथ पे बढ़ गया है। तो मेरे सब फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं, क्योंकि साड़ी में ब्लाउज तक ही कवर होता है तो आगे का हाथ पूरा दिख रहा है। तो वो मजाक जैसे उड़ाते हैं कि अरे हस्बैंड से नहीं दवाई ली क्या, वो तो सबको दवाई देते, तुमको दवाई नहीं दी क्या, ऐसे पूछते बोले। तो मैंने पूछा अच्छा इतनी इचिंग जो हो रही है आपको, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो काम का? तो वो बोली काम तो करना ही पड़ता है। ये डॉटर इन लॉ के बारे में बोल रही थी वो, कि ये मस्त गप्पे मारते बैठती ससुर के साथ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि रिसेंटली उनका थोड़ा बहुत कुछ तो फैमिली मैटर हुआ था, तो उसकी डॉटर इन लॉ घर छोड़ के चली गई थी। तो उसको फादर इन लॉ ने जाके लेके आए थे। तो तब से ये एकदम से चुप हो गई थी कि उसको कुछ बोलना नहीं है काम के बारे में। या
तो वो बोली कि मुझे ये दोनों गप्पे मारते बैठते, मैं तो सुबह से काम में लगी रहती हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इसको तो नहीं समझता है कि ये गप्पे मार रही है, लेकिन हस्बैंड को तो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल रखना चाहिए ना कि मैं सुबह से लगी हूँ काम में, तो उन्होंने तो इसको बताना चाहिए कि अरे तू भी काम में हाथ बटा। तो वो भी आराम से ये करते, इससे बातें करते बैठते, बोले ये सब बातें मुझसे, इससे और गुस्सा आता है मुझे कि ये भी मेरी साइड नहीं ले रहे, उनको तो कुछ तो बोलना चाहिए। ये सब बताते वक्त उसको रोना आ रहा था ये कि अरे मेरा कोई ये नहीं कर रहा है घर में, और मैं अभी डॉटर इन लॉ को भी कुछ नहीं बोल सकती। तो इसका ये जो रैश है ये मैंने क्लिक किया था बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर, अभी 15 डेज बाद का है ये। उसका जो रैश हाथ का कम हो गया और चेस्ट पे का भी काफी ये हो गया है, सफेद हो गया एकदम से, रेडनेस और उसके एजेस जो थे वो काफी कम हो गए। और हम लोग इसमें थोड़ा जो डॉटर इन लॉ ने केस में बताया था मदर इन लॉ के बारे में, उसको भी थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। और ये सब सोच के आपको क्या लगता है वो बताइए। मैम मुझे ये केस भी इग्निशिया ही लग रहा है। वो रो रही है और बोल रही है कि मेरे हस्बैंड को तो मेरे को समझना चाहिए, और इनजस्टिस का उसको लग रहा है कि मेरे साथ अनजस्टिस हो रहा है। इन सबको देख के इग्निशिया ही लग रही है, और वो एम्ब्रेसमेंट भी है। और उसने वो एक एंगर है, उसने वो जो बताया कि काम तो करना ही पड़ता है, यानी उसको उस मन नहीं है उसको काम करने का, पर डॉटर इन लॉ तो कर नहीं रही तो उसको तो वो करना ही पड़ता है, ऐसे भी बताया था उसने लास्ट में। अच्छा इग्निशिया आपको सिर्फ इनजस्टिस का सपोर्ट इस पे से ही लगा, और मैम काम तो करना ही पड़ता है उसके लिए। ये बाकी एक मिनट बेटा, ये किसी के यहाँ से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा, उसको ये कर दो, म्यूट कर दो। हाँ बोलिए बेटा। काम तो करना ही पड़ता है, यानी वो मन नहीं है उसका काम करने का, फिर भी करना पड़ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशन मैम रुब्रिक ले सकते हैं इसमें। हाँ ये सोच सकते हैं हम। और एक चीज मुझे और ऐड, एक चीज एलिमेंट्स फॉर्म सप्रेशन ऑफ एंगर। सुनो ना, एक चीज मुझे ये ऐड करनी है कि डॉटर इन लॉ घर छोड़ के चली गई थी। दिस हैज हैपेंड आफ्टर इग्निशिया। yes. समझे क्या? नाउ शी इज गॉन इन दैट डिफाइंड स्टेट। नहीं तो इग्निशिया क्या रूब्रिक है ना, वो कावर्डाइज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ऐसा है ना? है ना? हाँ, कावर्डाइज विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन ओपिनियन। समझा? नाउ इग्निशिया टुक द राइट एक्शन। मेडिसिन के बाद में उसका इफेक्ट ये आया कि वो जो एग्जैक्टली कर रही थी वो डिफाइन में आ गई। मतलब अब वो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट का जो उसका मन में था ना, अब वो असल में कर रही है। समझ रहे हो ना? मतलब पंजाब के किसानों को जो दिल्ली के अंदर इतने 700-800 किसान मरे गवर्नमेंट की वजह से, उन्होंने क्या किया? मोदी जी को आने दिया कि पंजाब में? समझा? हाउ दे टुक द रिवोल्ट, मतलब उन्होंने बता दिया कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो और हम ये सहन नहीं करेंगे। ये जो बंदा जो एक्शन लेता है ना, मतलब ये एग्जाम्पल है, ये जो एक्शन बंदा लेता है ना आफ्टर मेडिसिन, देन दैट इज दैट हैपेंस विद मेडिसिन, दैट इज व्हाट, मतलब हमने देखे हुए हैं आफ्टर गिविंग मेडिसिन कि औरतों ने घर में अन्याय सहन करना बंद कर दिया है, मार खाना बंद कर दिया है, या तो पति को अच्छे से समझाया है, या फिर पुलिस में गए हैं, या मायके गए, एंड दे हैव सॉर्टेड आउट द थिंग। और जहां पर वाइफ को एवर्जन टू हस्बैंड है और वो गलत है, मतलब वाइफ फिर हस्बैंड की भी बात समझने लगी आफ्टर द मेडिसिन, कह रहे नहीं हाँ ये अपने को इनके बारे में ये हमेशा डांटते बच्चों को, लेकिन गलत नहीं डांटते, बच्चे भी फिर पढ़ाई नहीं कर रहे। तो ये इंसान में ये समझ आती है दवाई के बाद में। ओके यस बेटा, कैरी ऑन। बोलिए और सही है।
मैडम इनके नहीं, वो पति बीच में से उसको ज्यादा दस्त भी लगे थे ना। क्या? गर्मी में इसको बड़े अति गर्मी में कैसे लेके आए आप? सॉरी, आवाज क्लियर नहीं। इतनी गर्मी में अरे अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? आपका माइक कौन है? आपका माइक कौन है? कौन है? तो भी अरे यार, कम से कम माइक तो बंद करो यार, इतनी क्या आपको माइक की इतनी पड़ी? ये किसका माइक ऑन था? इनको नेक्स्ट टाइम लेक्चर लेने के लिए बोलो। लो जी बोलिए मैडम। इनको इनके पति बहू को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इनसे ज्यादा, उसको लेके आए वापस, उसके साथ बातें करते बैठते हैं, और ये लेडी को सब चीजें जगह पे लगती है, इसलिए वो डॉटर इन लॉ की छोटी छोटी चीजों में क्या ध्यान डालती है, तो मुझे ये नेटरम मूड लग रही है। अच्छा, और मैम जैसे बहू ने जो नेचर बताया ना, तो उसमें एक फास्टिडियसनेस का, और अभी जैसे जो एक आ रही की ससुर और बहू मिलके बात करती, ये कुछ नहीं कर पा रही, तो हेल्पलेसनेस फीलिंग भी कहीं में है। और मैम ये रेस्ट कैनॉट रेस्ट में है। पहले बहू का जो केस है उससे वो निकलता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इसको ये स्लैंडर कर रही है बहू के बारे में, जो बोल रहे हैं ना, स्लैंडरिंग डिस्पोजिशन वाली सेपिया लग रही है। ओके, यस यस अनीता मैम, यस योर एनालिसिस इज आल्सो राइट। यस, this is nothing but सेपिया। उसका जो पहले के इससे मैंने स्लैंडर डिस्पोजिशन मतलब ऐसे लिया नहीं है रेपेटी में, पर सोच सकते हैं हम स्लैंडर डिस्पोजिशन और रेस्ट कैन नॉट रेस्ट टिल द थिंग्स आर नॉट इन प्लेस, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस, फिर सोशल पोजीशनिंग, जो उसको सब फ्रेंड्स बोलते थे कि तेरे हस्बैंड से तू दवाई नहीं लेती है, तो उसको ऐसे लगता था अरे हस्बैंड का नाम ये हो रहा है इसमें, मेरा मतलब उनकी दवा मुझे लागू नहीं हो रही है, ऐसे हो रहा है, तो वो बात का उसको टेंशन था। तो ये सब इसको सेपिया दिया है मैंने, और रिजल्ट आपने अभी ये देखा है, 15 डेज में इतना उसको चेंज आ गया है। तो अभी ये मैंने डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ का केस शेयर किया आपसे, तो इससे आपको कुछ आइडिया आता है कि फादर इन लॉ मेरे पास वो भी आए थे एक्चुअली, उनका उंगली एक ऐसे वो मारा मारी करते किया उन्होंने बीच में किसी केस में मैटर में ये किया, तो उनका उंगली टेढ़ा हो गया था, मिडिल फिंगर, उसमें बहुत पेन हो रहा था, तो उसके लिए वो मेरे पास मेडिसिन लेने आए थे। तो कोई बता सकता है क्या हो सकता है उनका मेडिसिन? लाइकोपोडियम होंगे मैडम। अच्छा, बहू को संभाल के ले रही। सासू माँ का और एक रूब्रिक बताओ, मेन रूब्रिक। जेलसी विमेन। वेरी गुड, समझा? और एक रूब्रिक और कोई बता सकता है? अंडरटेकिंग थिंग अपोज टू इंटेंशन। अंडरटेकिंग थिंग अपोज टू इंटेंशन। लिया स्लैंडर डिस्पोजिशन टू एंड हाइपोक्रिटिकल, समझे? चुगली कर रही है और उसके साथ में हिपोक्राइट है। हेलो, है ना? ये हिपोक्राइट नहीं है लेडी? यस सर। मतलब खुद को काम करना पड़ रहा है, खुद को काम करना पड़ रहा है। अब इसके तरफ मतलब ये बोल रहे कि हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इसके हाथ में रखने की इसने कोशिश किया, तब इन्होंने बहू के बारे में सोचा क्या कि इसका भी मन होगा। हेलो, मतलब हमारा तुम्हारा खून खून, हमारा खून खून तुम्हारा खून पानी। समझे ना? बाद में कभी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा ये समझो इसको, रूब्रिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बाद में कभी समझाऊंगा इंशाल्लाह। कैरी ऑन प्लीज। यस सर, आपने अभी कौन सा रूब्रिक बोला? स्लैंडर डिस्पोजिशन टू एंड हिपोक्रेटिकल। ओके ओके, थैंक यू। दो ही मेडिसिन है उसमें, फॉस्फोरस एंड सेपिया।
मतलब मुझे भी अभी सर ने बोलने के बाद ये मैंने भी पढ़ा कि ये इसमें बैठता है ये केस में बहुत अच्छे से। रेट्रो में हम इसको सोच सकते हैं। सो ये सेपिया का केस था। तो अभी मैंने जो बताया आपको फादर इन लॉ के बारे में, उसके बारे में बोलिए। उनका मैंने केस एज सच नहीं लिया क्योंकि यही सब मुझे पता है ना, वो फैमिली फ्रेंड है और ये लोगों का भी जो बातें हैं उस पे से भी आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। यस हेलो हेलो Yes, ma'am. हाँ मला वाटलं आवाज नाही। यस एनीबडी फादर इन लॉ के बारे में? मैम एक बार दोबारा बताइएगा थोड़ा सा उनके फादर इन लॉ मतलब अभी ये जो दोनों के केस मैंने डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ का शेयर किया, तो फादर इन लॉ भी मेरे पास आए थे मेडिसिन के लिए क्योंकि उन्होंने कुछ तो ऐसे मारा मारी हुआ था उनको किसी के मैटर में, तो उनके मिडिल फिंगर को इंजुरी हुआ था, तो वो ऐसे टेढ़ा होके बहुत पेन हो रहा था। उन्होंने उनका मेडिसिन तो लिया था बट फर्क नहीं हुआ, तभी मुझे बताया जब वो उनकी वाइफ को लेके आए थे एक बार फॉलोअप के लिए, तो उन्होंने फिर मुझसे मेडिसिन लिया, उसमें वो 21 में ठीक हो गए थे। तो क्या हो सकता है अभी ये देखो, मैंने बताया कि वो मारा मारी भी किए और वो जो कैसे वो होम्योपैथ कैसे बने? लाइकोपोडियम। लाइको क्यों, कैसे सोचा? मारा मारी भी कर रहे हैं आवाज थोड़ा बहुत दूर से आ रहा है, क्लियर नहीं। मारा मारी भी कर रहे हैं और मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर न होते, मतलब डिग्री न होते हुए भी मतलब कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसको क्या लेंगे हम? एम्बिशन बाय पॉसिबल एवरी मीन मैम। क्या? क्योंकि बहू को भी ले एम्बिशन जो है ना जिसमें वो बाय पॉसिबल एवरी मीन जो ऐसा कुछ रूब्रिक है उसका, मतलब साम दाम दंड भेद करके अपना सब काम निकाल लेना, ऐसा कुछ। Deceitful. डिसीटफुल इज करेक्ट। फंसा रहे हैं ना वो लोगों को, वो तो खुद उनके पास तो डिग्री नहीं, और आप लोग यकीन नहीं मानोगे उनका 4000 है फीस फर्स्ट कंसल्टेशन, और लोगों की भीड़ होती है उनके यहाँ पे। मतलब उनको ऐसे हमारे यहाँ पे पैरालिसिस बाबा ऐसे बोलते हैं कि उनको वो जो मेडिसिन देते हैं उससे पैरालिसिस में सही में, मतलब मैंने भी देखा है पेशेंट्स को राहत मिलती है, लेकिन वो कॉम्बिनेशंस और वो सब यूज करते हैं एक्चुअली बाय रीडिंग बोरी। हिपोक्रेसी भी आएगा ना मैडम? हाँ हिपोक्रेसी भी आएगा। चार्लेटन आएगा मैडम? चार्लेटन यस डेफिनेटली चार्लेटन। मैंने उनको सल्फर दिया। यस सल्फर 30 दिया था, तो उसमें ही हुई है। क्योंकि वो जब भी आते थे ना खुद की ऐसी बड़े इमारतें, मेरे ऐसे पेशेंट है, मेरे बारे में लोग ऐसे बातें करते हैं, हमेशा खुद का ही बताते रहते हैं। देखो सबसे मेन रूब्रिक को बाबा का मैंने लिया, जैसे वैशाली मैडम तक इम्प्रेस हो गए। मैडम बोल रहे कि मैंने खुद ने रिजल्ट देखे, तो सिंपल रूब्रिक है, चार्मिंग अदर्स। हाँ समझा? वैशाली मैडम जैसे स्टॉन्च होम्योपैथ भी बोलने लगे कि हाँ उनके इधर रिजल्ट आता है, और वो लोग उनको 4-4 हजार रुपए फी देते हैं इतना लोगों पर। समझ रहे हो ना? मतलब पेट्रोल डीजल के भाव 150 रुपए होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द कैरिज्मा, दैट इज द चार्म। समझे ना? वो जो चार्म होता है ना, दैट इज वेरी चार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अक्सर जो बाबा लोग रहते हैं ना, जो इधर उधर की किताबें देके दवाइयां देते हैं, ये ज्यादातर सल्फर होते हैं। ओके, दिस चार्ल्टन, ओके, एंड हिपोक्रेसी वेरी नाइस। कुकर पण नाही दिसलाय, तुम्ही घेतला काय? नाही ना, आम्ही नाही घेतला. तुम्ही घेतलाय का? घ्या वैशाली मैडम, कुकरचा डब्बा घ्या. बोस्टर भी है ना मैडम? यस बोस्टर भी है। चला बोस्टर हिपोक्राइट। हाँ लो आगे लो, फटाफट। किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो मैडम को।
हॅलो. This is all from my side. कुकरच्या डब्याच्या व्यतिरिक्त काही प्रश्न असतील तर विचारा. काय? किसने बोला ना कुकर का डब्बा तुम्हें कितना है? मुझे यही दिखाना था, मतलब फैमिली में हम कैसे ये केसेस, एक डॉटर इन लॉ का, एक मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ रिलेट कर सकते हैं, तो ज्यादा पूछना भी नहीं पड़ता है और हमको पता होता है रिलेशंस. यस डॉक्टर नीतू, हैंड रेज किया. मैम मुझे ये चीज पूछना था कि ये हिपोक्रेसी का मीनिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या एग्जैक्ट होगा, मुझे नहीं समझ में आया. दाम्भिक पता है क्या आपको? दाम्भिक नहीं सर, में बोलेंगे तो ज्यादा बेटर. दाम्भिक 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 आप लोग हिंदी में बात करते हो ना? सर दम्भ भरने वाला जिसको बोलते हैं ना, दम्भ, दाम्भिकता जो आप बोलते हैं, दम्भ भरने वाला. दाम्भिकता सिंपल है. आप हिंदी बात करते हो घर पे, मराठी करते हो नीतू? हिंदी में सर बात करते हैं. तो दाम्भिकता होती ना बेटा, दाम्भिकता होती मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब कथनी और करनी में फर्क, कथनी और करनी एग्जैक्टली अपोजिट होती है. ठीक. यस स्पेशली मैडम. यस, बहुत मजा आ रहा है. थैंक यू एवरीवन फॉर हियरिंग विद पेशेंस. पीएचएफ को थैंक यू नहीं बोलूंगी क्योंकि अपने घर पे कोई थैंक यू नहीं बोलता है. ये मेरा घर है, इसके लिए ये मेरी फैमिली है. नहीं, बिकॉज इट इज अ लेक्चर ऑफ पीएचएफ, सो यू कैन थैंक पीएचएफ and you are one of the top members of PHF. Thank you everyone. Thank you, very nice, fantastic. I'm feeling very nice. Anybody has any questions, they can ask in the group, we will answer them in tomorrow's lecture. Okay. Yes, Pranita madam. Yes, Dr. Sarkar. Bapu sir. No ma'am. No. हाथ ऊपर किया था ना? नहीं, गलती से हुआ शायद. गलती से कोई बात नहीं, गलती से बाबा होता है. या चला संपूर्ण. Thank you very much, madam. On behalf of PHF, it was really a very, very nice session. जहाँ पे, so this is the beauty of mind method कि हम without taking the whole case हम एक person तक पहुँच सकते हैं. ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, जेस्चर्स रहते हैं, जिस तरीके से रिलेटिव बिहेव करते हैं नो जब भी वो आते हैं किसी को लेके, तो मतलब ये माइंड मेथड में है, इसके लिए वो मैडम को कितना इजी गया कि वो उनके मतलब वो उनकी सास तो उनकी फ्रेंड है बट उनके हस्बैंड को भी मेडिसिन देना. तो आई डोंट थिंक मैडम ने केस लिया होगा उनका जो अब तक का ऑब्जर्वेशन रहा होगा उसके बेसिस पे ही मैडम को समझ में आया होगा. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइंड मेथड. थैंक यू मैडम फॉर शोइंग द होल फैमिली का केस कि हम कैसे यू नो नॉट ओनली, जैसे सर हमेशा बोलते हैं ना हमको दो आंखें हैं, तो एक आंख हमारी पेशेंट की तरफ होनी चाहिए, दूसरी आंख बाजू में जो भी आया है रिलेटिव जो भी आया है उसके पास होनी चाहिए, या हस्बैंड वाइफ आए हैं तो दूसरे के पास होनी चाहिए. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइंड मेथड. Pranita, sorry to interrupt you. Can anybody tell me the rubric of the wife? One rubric which is very important that is forgotten by all. Of the wife का rubric. कोई बोल सकता है? उसको प्रॉब्लम कहाँ से हो रही पता है? कि हस्बैंड उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. Yes. एंड और बहू भी नहीं दे रही है, बहू भी गप्पे लगा रही है, समझ रहे हो ना? तो दिस इज एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निग्लेक्टेड. समझा? बहू भी ध्यान नहीं दे रही है और हस्बैंड भी, मतलब इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. शी इज बीइंग निग्लेक्टेड. ओके, मतलब वो कर रही है, उसको तकलीफ हो रही है फिर भी कर रही है ना? और हस्बैंड भी गप्पे मार रहा है और वो बहू भी गप्पे मार रही है.
ठीक है, यस प्रणीता बेटा एक्चुअली पूरा कंटिन्यू। केस मैंने नहीं बताया, ये ऐसे था, मतलब फैमिली फ्रेंड होने से मैंने ज्यादा बातें नहीं बताई। उसका ऐसे नहीं कहना था कि 20 साल हो गए वो घर पे है, आप सोच सकते हैं, बोले हर छोटी बात में उनका टांग अड़ाना रहता है। मैं ऐसे खुद होके कोई डिसीजन नहीं ले सकती, हर चीज के बीच में उनका कुछ ना कुछ होता ही है। तो मैंने उनको पूछा, तुझे हस्बैंड के बारे में एक वर्ड में बताओ, क्या लगता है, कैसे लगता है, मतलब व्हाट द फीलिंग। तो उसने बोला मुझे गुस्सा आता है बहुत उनके ऊपर। So I prescribed Sepia, which acted wonderfully actually. क्योंकि वो जो काम भी उनके यहाँ पे बंगलो है उनका, तो आजू बाजू ऐसे नारियल के पेड़ ऐसे बहुत सारा सब कुछ है। तो वो पूरा नारियल उतारना, उसको सुखाना, उसका वो खोबरा किस बना के फ्रीजर में पैक करके रखना, यानी इतना बिजी रहती है हर ये काम में। तो मैंने उसको ऐसे डांसिंग ऐसे सोचा कि वो उसका इतना सब करती है हर चीज का प्रॉपरली एकदम। तो ये ऐसे क्लियर पूरा पिक्चर है उसका सेपिया का एक्चुअली। और आप एक देखो, सेपिया में पहले बताया था, आप लोग अभी बुक में आएगा मेरे इंशाल्लाह, एक रूब्रिक है एम्बिशन, लॉस ऑफ फॉर फेम और इंडिफरेंस टू फेम। कंप्लीट में एक रूब्रिक है इंडिफरेंस टू फेम। सेपिया जो होती है ना, गाय बोलते हैं आपको। तो गाय की पूजा कहाँ पे होती है पता है ना आपको? हाँ, पूछ की पूजा होती है, मुंह की नहीं होती। क्यों पता है? क्योंकि गाय में सब गुण होने के बावजूद भी मुंह खराब है उसका। तो सेपिया और आर्सेनिक ये दो रेमेडीज ऐसे हैं जो बहुत काम करते हैं लेकिन मुंह के वैसे बदनाम होते हैं। रिमेम्बर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेपिया से मुंह के वैसे बदनाम होती है। ओके, सेपिया आर्सेनिक ये दो लोग अपने मुंह के वैसे बदनाम होते हैं। ओके, या कैरी ऑन। तो यही ना, बहू ने क्या बोला कि कच 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 करती रहती है, नैगिंग जैसा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो कल का लेक्चर रहेगा डॉक्टर हरुण शेख सर का, सो प्लीज ज्वाइन एट द सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू सर फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस। थैंक यू मैम। थैंक यू वैशाली मैडम, प्रणीता मैडम, थैंक यू प्रियंका मैडम।